Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine at your home and studying well. Okay, today in this video we are going to start chapter 6 of class 10, that is life process, and we are going to include few parts of this chapter in this, that is this is the video part 1 video of this life process chapter. Okay, children, you might have heard about that. Suppose some organism, कोई मान लो lizard है या कोई animal है, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है ज़मीन पे, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये मर गया है ना, what we think that it is dead, but actually after some time it starts moving. तो one of the identity या one of the characteristic of a living being is that it is moving. मतलब हम ये सोच लेते हैं अगर कोई हिल रहा डुल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो लिविंग है, तो हम मान सकते हैं मूवमेंट इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो कभी नहीं मूव करते हैं, दे रिमेन एट वन प्लेस ओनली, बट स्टिल दे आर लिविंग. सो मूवमेंट ओनली कैन नॉट डिसाइड दैट द ऑर्गेनिज्म इज या द थिंग इज लिविंग और डेड. तो हम ऐसी कई चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो पूरी बॉडी है उसकी फंक्शनिंग किस तरह से वर्क करती है और उसमें क्या क्या हम देखने जा रहे हैं. तो एक्चुअली ऑल द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स लाइफ प्रोसेस या टू मेंटेन इट्स लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. तो दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस. मीन्स जो भी हमारी बॉडी में, चाहे हम मूव कर रहे हों या चुपचाप बैठे हों या सो रहे हों या वी आर ईटिंग फूड और वी आर स्टडिंग, कुछ भी हम कर रहे हों, बट भले ही हम वॉलेंट्रीली कुछ नहीं करें, लेकिन हमारे बॉडी में अंदर बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं एक साथ. तो ऑल दोज फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज लाइफ प्रोसेसेस. Basic life processes are nutrition, respiration, excretion, circulation, etc. So there are many life processes which we are going to study in plants as well as animals. Now why life process require energy? Life process require energy because if energy will not be there, so we will not be able to do all these life processes. So energy is required by doing all the work, not only running or moving, but even if we want to take breathe, सिर्फ सांस लेना है तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है. ऐसे ही प्लांट्स को भी although less amount of energy is required, but still they also require energy for performing different functions. So we'll start the first life process, that is nutrition. Now plants as well as animals, both type of these organisms need nutrition. They take food. So nutrition is what? The process of taking in food and utilizing it is called nutrition. Means जो process है जिसमें हम food ले रहे हैं, और food सिर्फ लेना ही नहीं है, हमने तो food ले लिया बट उसको पूरा utilization body में किस तरह से होता है वो सारा हम nutrition में पढ़ेंगे. Now all the organisms, अगर हम overall देखें plants, animals या हर तरह के organisms को हम अगर study करें तो nutrition can be of two type, autotrophic and heterotrophic. In the middle classes we have already understood about these topics. So autotrophic is the type of nutrition in which the organism can prepare its own food. अपने आप जो अपना food prepare कर ले तो वो क्या है? Autotrophic nutrition, in which organisms can synthesize their own food. Only green plants have the ability to this. So green plants will be called as autotrophs. Another type of nutrition is heterotrophic nutrition, in which organisms do not possess the ability to synthesize its food, but they have to depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. For example, animals and fungi. So all the animals, fungi and also non-green plants, the plants which are not green, they cannot make their own food. So there are mainly two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Students, can you tell me why we need food? Why food is required? Actually food is required for two things, for energy and for growth and repair of our body. एक तो food energy के लिए चाहिए ही सही, उसके अलावा
ग्रोथ और जो भी हमारी बॉडी में टूट फूट होता रहता है उसकी रिपेयरिंग के लिए हमको फूड की ज़रूरत होती है. ऐसे ही ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर दीज टू पर्पसेस. नाउ विल स्टार्ट विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अच्छा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ओपन योर बुक, चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेस, पेज नंबर 94. So when we talk about autotroph nutrition, the organisms which can make their own food are called autotrophs. Just now we have said, like green plants. Photosynthesis, the process by which green plants can make their own food with the help of sunlight and chlorophyll are called photosynthesis. The process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. The word photosynthesis is made up of two parts. Photo means light and synthesis means to make. तो light की presence में जब कोई organism food prepare कर पाता है तो उसको हम कहते हैं photosynthesis, and this can be done only by green plants. We can summarize the whole event of photosynthesis by this equation. You are familiar with this equation, पहले भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं previous classes में. Just now I said कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर या इसको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, दिस इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन तो वेस्ट प्रोडक्ट है, बट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन ऐसा हम समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका उल्टा अगर हम कर दें तो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा, है ना. रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे अभी आगे. और उसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं. ठीक है, वील लर्न दिस इन डिटेल इन द लेटर सेक्शन. पहले हम फोटोसिंथेसिस पे फोकस करते हैं. तो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो सब कहेंगे कि हाँ लीव्स में होता है. तो लीव्स में होता है. अब लीव्स में क्या प्रेजेंट है, लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में रहता है. क्लोरोप्लास्ट इज द वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन कलर पिगमेंट, और यही क्या है, लाइट को ट्रैप करता है. You can understand the whole process by this diagram. See, sunlight is given out. Sunlight is absorbed by the leaf in which chlorophyll is present. So chlorophyll traps light energy to make food. Now, then food is made in the form of starch. अब जो plants होते हैं उसमें जो भी food बनता है, कुछ तो फूड दूसरे लाइफ प्रोसेसेस में काम आ जाता है, बट सम अमाउंट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स ऑल्सो. प्लांट की बॉडी में स्टोर भी होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टार्च का हम टेस्ट भी जानते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू द लीव्स ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. इट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स and water is absorbed from the roots and oxygen is given off. So ये इसको हम इस तरह से पूरा एक बार डायग्राम में समझ सकते हैं. Now there are stomata. Stomata का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक बार. Stomata में guard cells present है. These are the guard cells which are bean shaped. They have in the center stomatal pore. This is closed stomata and this is open stomata. Generally in the morning stomata opens wide, और जब बहुत धूप होती है तो ये क्लोज हो जाते हैं. तो दिस इज ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज्ड. गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. गार्ड सेल्स एक्चुअली कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं, एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑल्सो. ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू दीज स्टोमेटा. तो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा बाय विच द एक्सेस वाटर इज इवेपोरेटेड. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ.
ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। अगर हम लीफ को लें, लीफ का इस तरह से सेक्शन कट करें, सपोज ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है लीफ का, तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इसमें आप समझ सकते हैं ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। नाउ द डिफरेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन दीज टू अपर एपिडर्मिस। नाउ सबसे ऊपर का जो कोटिंग रहती है लीफ के ऊपर, वैक्सी क्यूटिकल की कोटिंग रहती है जो कि प्रोटेक्ट करता है लीफ को वाटर, सनलाइट वगैरह से। देन दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। देन एयर स्पेसेस आर देयर, गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा में। अच्छा, आपको पता होगा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ कंटेन्स मोर स्टोमेटा, या मोस्टली जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन गार्ड सेल्स, जैसा कि भी हमने देखा। नाउ आई वुड लाइक टू समराइज इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले absorption of light energy, absorption of light energy by the chloroplast, then splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, conversion of this light energy into chemical energy, absorption of light energy, then conversion of light energy into chemical energy, then splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and fourth event ये होता है कि कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने लिया उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट करना। तो दीज आर द 4 इवेंट्स जो स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। सारे एक साथ या जरूरी नहीं है स्टेप बाय स्टेप चले, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट ये सारे स्टेप्स चलते हैं इसमें। ओके, सम एक्टिविटीज आर गिवन इन योर बुक, यू कैन रेफर टू बुक पेज नंबर 96, एक्टिविटी 6.1, यू कैन रेफर टू योर बुक। What it is given in this activities, ये स्टार्च टेस्ट बताया। सपोज हम 2 पॉटेड प्लांट्स लें और उनको हम 72 आवर्स के लिए डार्क में रख दें, तो उससे क्या होगा, जो सारा स्टार्च है वो यूज हो जाएगा और डी स्टार्च हो जाता है प्लांट। ठीक है, फिर उसको हम बाहर निकालें, उन दोनों पॉटेड प्लांट्स को वापस से हम सनलाइट में रख देंगे फॉर 6 to 8 आवर्स। फिर हम इसको स्टार्च टेस्ट अप्लाई करते हैं। आप अपने बुक में देख सकते हो लीफ कैसा लिया है हमने, वेरिएगेटेड लीव्स। ऐसे भी लीव्स होते हैं जो कहीं से ग्रीन दिखते हैं, कहीं से येलो दिखते हैं, तो वो कलर्ड लीफ है जिसमें कि कहीं पे स्टार्च प्रेजेंट है या कहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कहीं पे नहीं प्रेजेंट है। तो व्हाट वी डू, वी विल अप्लाई स्टार्च टेस्ट ओवर इट। तो जब हम उसको सनलाइट में रख देंगे उसके बाद उसके ऊपर स्टार्च डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। एक्चुअली आयोडीन डालने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पे स्टार्च बन गया होगा, हमने दोबारा से धूप में रखा था उसको, तो जहाँ जहाँ पे स्टार्च बन गया होगा वहाँ पे अगर आयोडीन जाएगा तो आयोडीन विल गिव ब्लू ब्लैक कलर। इट मीन्स स्टार्च, इफ स्टार्च इज प्रेजेंट द आयोडीन विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर। तो इट शोज कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ओके, दिस एक्टिविटी प्रूव दिस। वन मोर एक्टिविटी इज गिवन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज गिवन इन एक्टिविटी 6.2 विच शोज 2 पॉटेड प्लांट्स लिए हैं, उनको भी डिस्टार्च किया है, फिर वापस उनको धूप में लाए हैं, सनलाइट में फिर रखा है 6 आवर्स के लिए, लेकिन उनके साथ एक एक प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। क्या रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ एक भी उसको फिर बेल जार से कवर कर दिया। एक पॉट के पास तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा और दूसरे पॉट के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये फंक्शन होता है कि इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर दोनों को बेल जार से कवर कर दिया। अब क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। तो द जार या द पॉट नियर विच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉज केप्ट देयर, उसमें स्टार्च बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो हम थोड़ी देर बाद दोनों के एक एक लीफ को प्लग करेंगे और फिर से आयोडीन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसके लीफ को पे जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाया, बना जो भी वो सारा एब्जॉर्ब हो गया। तो दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। Now we come to heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is basically of 3 types: holozoic, saprophytic and
पैरासाइटिक। व्हेन वी टॉक अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, क्या करते हैं, वी पुट द होल फूड इनटू आवर माउथ, फिर अंदर जाके डाइजेशन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन होगा, बाहर कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एमीबा एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मशरूम है या और भी ऑर्गेनिजम्स है, फंगी, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ओनली दे रिलीज सम केमिकल्स ऑन द फूड, फूड के ऊपर ही वो अपने केमिकल्स रिलीज करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे और फूड बाहर ही डाइजेस्ट होगा। देन इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंगी। थर्ड टाइप इज पैरासाइटिक, मीन्स द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे तो क्या था, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे थे, यहाँ पे पैरासाइट्स में आइदर द पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके ऊपर रहता है। तो पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम होस्ट कहेंगे। जो फूड प्रोवाइड करेगा वो होस्ट कहलाता है। एंड द पैरासाइट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, कस्क्यूटा, अमरबेल आपने नाम सुना होगा। तो कस्क्यूटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट और टिक्स इंसेक्ट्स में आ जाते हैं जो एनिमल्स के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं एंड दे सक ब्लड। नाउ विल कंटिन्यू द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एक्चुअली जो भी पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसको हम 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोई सा भी एनिमल हो, ऑल द स्टेप्स आर 5 स्टेप्स आर देयर। First is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. One by one we will see all these steps. First we will see in nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba आप देख सकते हो, you have studied in previous classes also. Amoeba सबसे small animal में हम consider कर सकते हैं, microscopic unicellular organism है। तो हम एक general idea हो जाएगा कि organisms कैसे food absorb करते हैं या food को कैसे लेते हैं, फिर कैसे digest होता है। तो दिस इज अ स्मॉल एनिमल विच ऑल्सो शो ऑल दोज प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस इसमें भी होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एक एक करके हम देखते हैं। एक्चुअली अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, कोई हैंड्स नहीं है, नथिंग इज देयर, ओनली वन सेल इज देयर जिससे वो सारे काम करेगा। तो इसमें ये इसकी बॉडी में से ही कुछ इलोंगेशंस निकलते हैं, प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा ऑल्सो टेक द होल फूड इनसाइड, इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही हो रहा है। तो अमीबा एज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, द सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विच रिएक्ट्स विद एंजाइम एंड डाइजेस्टेड। इट इज एन ओमनिवोर, प्लांट्स का कोई पार्ट हो या एनिमल का कोई पार्ट हो, सब खा लेता है। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द फूड पार्टिकल। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास में आता है, ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है एंड इट कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। नाउ ये जब पूरा कवर कर लेता है तो एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। फोल्ड होने के बाद ये फूड वैक्यूल बन जाएगा, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे और ये फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। देन द अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड विल बी थ्रोन आउट, तो वो इजेशन भी हो गया। तो इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन भी हो जाएगा एंड इजेशन मीन्स वेस्ट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ऑल्सो। तो अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया उसके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। देन फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। तो इन दिस वे न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। इट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 98। नाउ विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। Now you can refer to page number 99 diagram also, human alimentary canal का diagram दिया हुआ है। इसमें actually सारा जो process है, again we can divide the whole process of nutrition into 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। तो हम एक एक देखेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से बॉडी के या जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसके किस अलग अलग पार्ट में किस तरह से डाइजेशन होगा। तो विल स्टार्ट द डाइजेशन फ्रॉम द माउथ। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हम सोचते हैं सब पेट में जाके डाइजेस्ट हो रहा होगा, लेकिन डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है।
सो माउथ इंजेशन का काम तो करेगा ही सी। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड, तो इंजेशन में फूड हमने अंदर लिया, दैट इज डन बाय द माउथ। लेकिन माउथ के और भी फंक्शंस हैं, क्या है हम देखते हैं। माउथ ऑल्सो कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। जब भी हम फूड के बारे में सोचते हैं या बहुत अच्छी खुशबू आती है तो हमारा मुंह में पानी आने लग जाता है, दैट मीन्स वाटरिंग ऑफ माउथ। तो वो क्या है, एक्चुअली सलाइवा है। तो सलाइवा सिर्फ वाटर ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एक्चुअली सलाइवा कंटेन्स सम एंजाइम्स ऑल्सो। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं विच सिक्रीट सलाइवा एंड द सलाइवा contains salivary amylase which helps in the digestion of starch। ठीक है, स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट करेगा। इसको टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी। एक्टिविटी दी हुई है 6.3 है ना, वो एक्टिविटी भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्रेजेंट इन माउथ इज सलाइवा which helps in digestion of starch. Then teeth are present which helps in grinding of food. Then tongue is also there which help in tasting of food and rolling of food, या पूरा मिक्स करके फिर उसको स्वेलो करने में काम में आता है। तो हम जब सलाइवा की ही बात कर रहे हैं तो एक जो एक्टिविटी दी है आपके 6.3 वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उनमें 1 ml वो ले लिया आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया, सॉरी स्टार्च सॉल्यूशन लिया 2 टेस्ट ट्यूब में। देन एक में हम थोड़ा सा सलाइवा डाल देंगे। 2 टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लिया और एक टेस्ट ट्यूब में, उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सलाइवा डाल देंगे। आफ्टर फ्यू मिनट्स या 20 मिनट्स 30 मिनट्स बाद में हम इसमें आयोडीन टेस्ट लगाएंगे। आयोडीन टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है विल टर्न ब्लू ब्लैक। अब आप सोच के बताओ कौन सा ब्लू ब्लैक होगा, जिसमें सलाइवा हमने डाला था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। मीन्स वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया। सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया तो स्टार्च है ही नहीं, लेकिन जिसमें हमने सलाइवा नहीं डाला था वो उसमें स्टार्च रहेगा, तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा विद आयोडीन सॉल्यूशन। आया समझ में? प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन, द एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक। ओके, लेट अस प्रोसीड। माउथ से अब हम चलते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई प्रोसेस नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, ओनली एक तरह से कनेक्शन है ये फूड मतलब स्टमक से माउथ को कनेक्ट करने के लिए। तो इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस। अब यहाँ पे लेकिन एक काम होता है, मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस विच हेल्प्स टू पुश फॉरवर्ड द फूड को आगे फॉरवर्ड करने में ये मूवमेंट हेल्प करता है। तो क्या नाम है इस मूवमेंट का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक्चुअली ईसोफेगस के अलावा आगे हमारे इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत ये इस तरह का मूवमेंट चलता है ताकि फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड। ओके, नाउ ईसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक। स्टमक में खुलेगा ईसोफेगस। अब स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अभी तक हमने डाइजेशन का कोई खास काम नहीं देखा है। यहाँ तो इंजेक्शन हो गया था, यहाँ पे थोड़ा फूड आगे चला गया। अब हम पढ़ेंगे स्टमक में। मेन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक ओनली। नाउ स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेप्सिन, दिस इज द एंजाइम विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। देन HCl इज देयर जो कि एसिडिक मीडियम बनाता है। अब एसिडिक मीडियम की क्या जरूरत आ गई, तो एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा। तो हम जब फूड को च्यू करते हैं, फूड को च्यू करके चबाया, कभी कभी जल्दी भी चबा लेते हैं, लेकिन स्टमक जो है जब एब्जॉर्प्शन होने जाएगा फूड का, फूड ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, सॉलिड फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्या होना पड़ता है, पूरे फूड को लिक्विफाई होना पड़ता है। लिक्विफाई होगा, पूरा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा फूड इज नॉट एब्जॉर्ब। इसलिए कहते हैं ना चबा चबा के खाना चाहिए। तो HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब अगर हमारे स्टमक में इतना सारा एसिड होगा, ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है, इट्स pH इज नियरली अबाउट 1.3,
तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे हाथ पे या कहीं हमारे स्किन पे गिर जाए या कपड़ों पे गिर जाए तो स्किन या पूरा हम डैमेज हो जाएंगे, मतलब कपड़ा भी खराब हो जाएगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा स्टमक कैसे टॉलरेट कर पाता है? तो उसके लिए म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस की लाइनिंग होती है, स्लाइमी लेयर है, चिकना ऐसे सब्सटेंस होता है जो हमारी स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो एसिड हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन आपने सुना होगा अगर ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है तो कई बार पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो देन इफ इट इज़ टू मच अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो वो हार्मफुल हो जाता है। अदरवाइज म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। HCl मीडियम को एसिडिक तो बनाता ही है, इसके अलावा जब हमने फूड अंदर लिया था, इंजेस्ट किया था, उस वक्त कई बैक्टीरिया भी अंदर आ गए होंगे हमारी बॉडी में साथ में, तो उन सबको किल करता है। ओके, तो HCl के दो फंक्शंस हैं, एक तो मीडियम को एसिडिक बनाएगा, दूसरा बैक्टीरिया को, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल करता है। नाउ अभी तक हमने सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन देखा पेप्सिन की हेल्प से। अब जो बाकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। नाउ फूड आफ्टर स्टमक मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम जाते हैं, जैसे ईसोफेगस से स्टमक में आए, तो वहाँ पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, ताकि वापस रिवर्स डायरेक्शन में फूड हमारा ना चला जाए। तो स्फिंक्टर्स मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही जब हम स्टमक से इंटेस्टाइन में आएंगे तब भी स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होगा तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिवर एंड पैनक्रियाज। लिवर एंड पैनक्रियाज ऑल्सो सिक्रीट सम ज्यूसेस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ अदर थिंग्स। तो लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ पर्टिकुलरली फैट्स। फैट्स का डाइजेशन करने में के लिए वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब बाइल जूस का एक छोटा सा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? फैट एक बार में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। दिस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लिवर में बाइल जूस सिक्रीट होगा और बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। देन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा। ये सब डाइजेशन में अभी हम देखेंगे कैसे हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी हैं, इंटेस्टाइन खुद भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा, लाइक विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर, देखो डाइजेशन का जो एक तरह से जो पूरी डेफिनेशन है क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में हो जाए वो? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। फूड कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फूड तो हम लेते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन दैट कंडीशन या इन दैट पोजीशन। तो क्या करना पड़ता है? फूड का ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जो कि ये डिफरेंट एंजाइम्स या डिफरेंट जूसेस हैं वो हेल्प करेंगे इसमें डाइजेस्ट करने में। तो डाइजेशन का मतलब ही ये है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड molecules. So carbohydrate will get converted into glucose, fats will converted into fatty acids and glycerol. End में ये end products है इनके, and protein into amino acids. Pancreatic juice में भी कुछ enzymes present है, like trypsin, which helps in breakdown of proteins, digestion of proteins. Proteins पहले peptones में convert होते हैं. Then lipase enzyme is also present in pancreas, जो यहाँ पे फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया था, वो इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करेगा वो यहाँ पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो इन सब चीज़ों का, इन सब जो कॉम्प्लेक्स फूड है, डाइजेशन एक ही स्टेप में नहीं हो जाता है, डिफरेंट स्टेप्स में कन्वर्ट होते होते सबसे सिंपलर फॉर्म में आता है वो। ठीक है, तो ये लास्ट में हम कहाँ पहुँच गए कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। नाउ ग्लूकोज इज इन द एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, कभी किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो उसको चपाती नहीं खिलाते हैं, क्या करते हैं? ग्लूकोज पिलाते हैं या फिर ग्लूकोज की बॉटल चढ़ा देते हैं। तो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज़ इन द डाइजेस्टेड फॉर्म। तो ग्लूकोज इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Similarly, fats are converted into fatty acids and glycerol and protein into amino acids. ये बाइल जूस
की मदद से एमल्सिफिकेशन हो रहा है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स. This is the diagram which is given in your book also. We have gone through all the parts. अब हम पहुंचे हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या हुआ था? डाइजेशन हो गया. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन की बारी है. तो स्टमक के बाद हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहते हैं, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स में थोड़ा सा अलग होता है. हर्बीवोर्स को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है. हर्बीवोर्स को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्यूलोज इज हार्डर टू डाइजेस्ट, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लॉन्ग होती है, ज़्यादा लॉन्ग होती है. जबकि जो कार्निवोर एनिमल्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी शॉर्ट होती है. अब नाम ज़रूर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी लेंथ करीब 5 मीटर होती है. तो हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कार्निवोर्स हैव लिटिल बिट शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा विलाय प्रेजेंट होते हैं. विलाय पढ़े हैं हमने. विलाय आर द प्रोजेक्शंस विच आर कमिंग आउट थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या काम में आएंगे? दे इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द विलाय टू एब्जॉर्ब फूड. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले तो डाइजेशन भी हुआ, देन ऑल द एब्जॉर्प्शन इज डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. यू कैन सी ईसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. देन वी कम टू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम कुछ नहीं होता है, ओनली इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर. तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर. ओके. देन द रेक्टम इज देयर विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज pushed forward, it goes into the rectum, it is stored temporarily in the rectum, then it is digested. Last process है हमारा न्यूट्रिशन का इजेशन. तो लास्ट में क्या होगा? एनस हेल्प्स इन द इजेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू दिस एनस. We can summarize the whole process by these points. We have seen the process of digestion in the flow chart also. Mouth में the breakdown takes place with the help of salivary amylase. The food moves to the stomach through the esophagus, which performs peristaltic movement. Enzymes and various digestive juices from liver, gallbladder and pancreas act on the chunks from the stomach in the small intestine. तो digestion और absorption हो जाता है. Then in the large intestine, the remaining nutrients are absorbed and the leftover food is removed from the body through the anus. So this was about digestion. आपके एक टॉपिक और है छोटा सा, dental caries, means you have to careful about your teeth also, है ना. You should brush your teeth twice a day. Otherwise what happens? The food accumulated या जो deposit हो जाता है हमारे दांतों में, वो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं. बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट एसिड डिस्ट्रॉयज आवर टीथ. हमारे टीथ को वो रफ बना देते हैं. रफ बनाते बनाते उसमें कैविटी बन जाती है. कैविटी में और बैक्टीरिया डिपॉजिट हो जाते हैं और फूड इकट्ठा हो जाता है एंड स्लोली कैविटी हमारे दांतों के नर्व्स तक पहुंच जाती है एंड इट गिव राइज टू टूथएक और पूरे हमारे दांत खराब हो जाते हैं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ब्रश योर टीथ 2 times a day. I hope you are getting. Now let us move to the second topic, second life process, that is respiration. अब जब हमने डाइजेशन की बात की थी, डाइजेशन में हमने कहा था द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. अब सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, हमारा बॉडी का काम ख़त्म नहीं होता. हमने तो बस फूड को अंदर लिया और हमारा काम ख़त्म. बट बॉडी अभी और वर्क करेगी. जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में मान लो, तो उसका अब आगे क्या करना है? तो हमारी जो बॉडी के सेल्स है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, सेल ऑर्गेनेली, है ना. तो ऑक्सीजन की हेल्प से उस फूड का ब्रेकडाउन होगा टू गिव एनर्जी. एनर्जी भी तो चाहिए ना, फूड तो ले लिया हमने, अब फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी? तो वो रेस्पिरेशन से मिलती है. तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide
फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। जो फूड हमने लिया था वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन होगा। फूड का ऑक्सीडेशन होगा और उससे जब एनर्जी मिलेगी जब भी हम कोई चीज़ बर्न करते हैं। एक्चुअली फूड बर्न होता है हमारी बॉडी में जाके, पर ऐसे नहीं कि फ्लेम्स नहीं निकलती हैं, लेकिन हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी एंड वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन। अब अभी छोटे बच्चों से पूछे हम रेस्पिरेशन क्या है तो कहेंगे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस इज नॉट सो। दो रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर जाकर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो अभी हमने यहाँ समझा, वो है एक्चुअल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रीदिंग है। तो रिमेंबर दिस। तो दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं रेस्पिरेशन को। एक तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो दिस इज द मेन थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी। यू कैन रेफर टू पेज 101। कुछ एक्टिविटीज भी हम डिस्कस करेंगे। एक एक्टिविटी दी है आपके फिगर 6.7 में। क्या कर रहे हैं हम, लाइम वाटर लें। भाई ये कैसे प्रूव करें कि हम जो गैस रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो उसके लिए एक टेस्ट है छोटा सा कि हमने लाइम वाटर लिया एक टेस्ट ट्यूब में और एक पाइप की हेल्प से हम उसमें अपन फूंक लगाएंगे, मीन्स विल ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ। तो क्या होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी विच शोज दैट द गैस विच इज कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी इज carbon dioxide. Okay, let us see the process of respiration. Now breakdown of glucose, हमने बताया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीडेशन होगा। तो इट कैन बी ब्रेकडाउन तीन तरह से हो सकता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा C6H12O6। तो इट इज a 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब जब सेल है हमारा, सेल के पार्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, सेल में साइटोप्लाज्म होता है एंड साइटोप्लाज्म के अलावा सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो जहाँ रेस्पिरेशन जहाँ पे होगा हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट या पायरुविक एसिड ये टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, विल स्टडी इन डिटेल इन हायर क्लासेस। तो ये पहले तो ये काम हो गया, ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। अब इस पायरुविक एसिड के 3 फेट्स हो सकते हैं। फेट्स मीन्स 3, इनके फ्यूचर में ये 3 तरह से कन्वर्ट हो सकता है। नाउ जो कि सबसे कॉमन है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, मीन्स द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको याद होगा पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। एवरी सेल इज गेटिंग एनर्जी थ्रू दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, वाटर वेपर इज रिलीज्ड एंड एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेस्पिरेशन से हमें मिल रही है वो एनर्जी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दो तरह से, दो जगह हम 2 एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक तो हमारे मसल्स में, कभी आप फास्ट रनिंग कर लेते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या कोई हैवी चीज़ उठा लेते हैं तो आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो क्या हुआ, हमने हमारी मसल्स को ऑक्सीजन तो नहीं मिली उतनी, लेकिन हमने उनसे इतना ज़्यादा वर्क करवा लिया कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के बजाय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड दिस लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। वहाँ पे जहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा वहाँ पे आपको पेन होगा एंड एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो
तो ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है यीस्ट में, फर्मेंटेशन हम करवाते हैं तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ऐसे ही यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल, एल्कोहल फॉर्मेशन होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड सम एनर्जी इज फॉर्म्ड. दिस इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल C2H5OH. So these are the 3 various pathways of breakdown of glucose. पेज नंबर 102 पे आपके बुक में दिया हुआ है. एक बार हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को रिवाइज कर लेते हैं. थोड़ा मैंने आपको अभी बता ही दिया था. एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि नाम से ही हमें पता लगता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा. कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा. थर्ड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर. अभी देखा हमने जब पायरुविक एसिड में एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना. देन यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स आर या तो इथाइल अल्कोहल बन रहा था या लैक्टिक एसिड बन रहा था एंड CO2. लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज 38 ATP. ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी जो कि बॉडी में स्टोर होती है हमारे एनर्जी. तो फुल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो लॉट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओनली 2 ATP एनर्जी इज फॉर्म्ड. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन may take in bacteria also and human muscle cells, जैसे अभी हमने देखा. This is the reaction of aerobic respiration. C6H12O6 plus O2 gives 6 CO2 plus 6 H2O plus 686 kilocalorie. Anaerobic respiration में ऑक्सीजन नहीं लगेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो C6H12O6 gets converted into ethyl alcohol, carbon dioxide and 56 kilocalorie of energy is released. Now we'll understand the process of respiration in humans. Humans में किस तरह से respiration होता है. तो human respiratory system means जब हम inhale कर रहे हैं, ऑक्सीजन को inhale कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से होते हुए कहाँ तक पहुँचेगी और क्या क्या काम होंगे. तो this is the flow chart with which you can understand the passage of oxygen. तो it starts with nostril. ये flow chart भी देख सकते हैं, फिर ये diagram भी देख सकते हैं. It is in your book also. पेज नंबर 104. तो इट स्टार्ट्स विद नोस्ट्रिल, एयर गोज इनटू नोस्ट्रिल. ये पूरा नेजल पैसेज होता है, नेजल कैविटी होती है. अच्छा, आपको पता होगा नेजल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट को या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं. देन फेरिंग्स में जाते हैं, सॉरी, एयर गोज इनटू फेरिंग्स. देन लैरिंग्स, लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स. देन इट गोज इनटू ट्रैकिया. ट्रैकिया यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस इज ट्रैकिया. देन ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. ब्रोंकाई जो हर एक एक लंग्स में जा रहा है, ईच लंग इज गेटिंग 1 ब्रोंकाई. ब्रोंकाई इज गोइंग इनटू लंग्स. देन ब्रोंकाई जब लंग्स में चला जाता है ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई और सब डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में. मतलब एक ट्यूब और सब छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, तो उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. देन द लास्ट पोर्शन या लास्ट पार्ट वेयर ऑक्सीजन रीचेस इज एल्वियोलर सैक, या हम उनको एल्वियोलाई कह सकते हैं. इस डायग्राम में देखिए छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, पैकेट्स ऑफ एयर हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कह रहे हैं. एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. इनमें ब्लड कैपिलरीज लगी रहती हैं, जो जहाँ से ब्लड ऑक्सीजन यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से लेकर ऑक्सीजन यहाँ तक आ गई. अब जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी और ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुंचाएगा. अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब क्या होगा जब इनहेलेशन होगा, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड्स. जब हम बहुत तेज सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी जो थोड़ी एनलार्ज हो जाती है. ठीक है, रिब्स ऑल्सो लिफ्ट्स अप. रिब्स ऊपर की तरफ हो जाएंगे और चेस्ट कैविटी आगे की तरफ हो जाएगी. डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप. ये डायफ्राम
फ्लैट हो जाता है। अब क्या होगा, ये तीनों कंडीशंस जो हैं, तीनों जो सिचुएशंस हैं, इससे लंग्स की कैविटी या लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस। अब जब वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा हमारे लंग्स में, एयर प्रेशर अंदर कम होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो ऑटोमेटिकली द एयर या ऑक्सीजन विल कम इनटू द लंग्स। इसका ऑपोजिट अगर हम देखें, जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, मतलब हम सांस छोड़ रहे हैं, तब क्या होगा, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो क्या होगा, रिब्स विल मूव डाउन एंड डायफ्राम बिकम्स डॉम शेप्ड। तो ये तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, ऐसी बन रही हैं कि चेस्ट कैविटी या जो लंग्स का जो चैम्बर है वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस। अब डिक्रीज होगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, रूम छोटा हो गया तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब एयर प्रेशर अंदर बढ़ा हुआ होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो एयर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑटोमेटिकली। तो ये डिफ्यूजन, एक तरह से डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये हमने अभी समझा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यू। इसको एक बार इस फ्लो चार्ट से हम रिवाइज कर लेते हैं। एयर रिच इन O2, सपोज एयर अभी कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलाई में, जो कि रिच इन ऑक्सीजन है। नाउ मैंने जैसे बताया था एल्वियोलाई के आसपास ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड थ्रू द, मतलब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में पहुंचेगा थ्रू ब्लड वेसल्स। नाउ ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, तो ऑक्सीजन विल बाइंड विद हीमोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर टिश्यूज में छोड़ देगा, सेल्स में ले जाकर छोड़ देगा, और वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। जब सेल्स में फूड भी पहुँच जाता है और ऑक्सीजन भी पहुँच जाता है तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। देन जैसे कि यहाँ से ऑक्सीजन आया था ब्लड में, ऐसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा और फिर उससे इधर आएगा, ब्लड वेसल्स में आएगा। देन ब्लड वेसल से CO2 विल बी रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक। यहाँ पे एल्वियोलर सैक में ऑक्सीजन रिच ब्लड आया था और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा और एल्वियोलर सैक में, जहाँ से इट इज सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स डू रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हम एयर में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वाटर में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। अब हम थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। मेनी टाइम्स व्हेन वी आस्क क्वेश्चन कि डू प्लांट्स रेस्पायर, तो बच्चे कहते हैं नो, बट एक्चुअली प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। बस क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम वो फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ड्यूरिंग नाइट व्हाट हैपन्स, दे डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस, दे डू ओनली रेस्पिरेशन, मीन्स दे ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। दिन में तो जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो रिलीज हुई थी वो यूज हो जाती है उनके रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी वो काम में आ जाती है फोटोसिंथेसिस में। बट एट द नाइट आपको दिखेगा कि रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू स्टोमेटा। इन लीव्स, लीव्स रेस्पिरेशन क्या, पूरे हमारे बॉडी में तो सिर्फ हम नोज से और लंग्स से काम चला लेते हैं, पर प्लांट्स में पूरी बॉडी रेस्पिरेशन करती है। तो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टेम्स में लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट्स में पूरा जनरल सरफेस जो है वो रेस्पिरेशन के लिए वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन 2 life processes, that is one is nutrition and another is respiration. So students, I hope you understood. The remaining 2 parts of this chapter we will discuss in the next session. Go through the video properly, try to understand, and see you in the next lecture. Goodbye, take care.